dealing with the definition of goods. Goods is the subject matter of contract of sale. Now if you see the definition of sale, sale involves what? Transfer of property in goods. Transfer of property in goods. Transfer of property, that is transfer of ownership in goods. Now the property may be special property or general property. The property must be in goods, but again the property may be a general property or special property. What we are dealing in the Sale of Goods Act is general property in goods and not special property. Now what is the difference between a general property and special property? Now if, let us take an example, X sells a motor car which belongs to him to a buyer B. The motor car belongs to him and he has sold the car. It is a general property in goods. He has got full right over it. But suppose if on the car there is a charge of a bank, बैंक से उसने लोन ले रखा है और कुछ पैसा देना बाकी है, that car becomes what? A special property. For the bank also it becomes a special property because bank has got a charge about the car. Car belongs to somebody else. So property means here the general property in goods. If A who owns goods pledges them for raising money to B, another example, A has pledged the goods with a money lender and has taken a loan. So we say that A as the owner, he had general property in the goods which he has pledged with the money lender. When you pledge, the money lender gets the possession of that goods. Suppose एक आदमी ने जो है 100 ग्राम सोना जो है प्लेज किया है with the money lender. The gold belonged to the borrower. Borrower has given the security of the gold with the money lender and he has taken the loan. For the borrower, the gold is a general property, but for the money lender, it is a special property. Though he has got the possession of that gold, but the gold doesn't belong to him. Correct? So the money lender with whom the goods are pledged, for him the gold becomes what? A special property. He has got a right to retain that special property till the borrower makes the repayment of the loan. Pledge में ऐसे ही होता है, लेंडर अपने पास में सिक्योरिटी को रख लेता है और जब बोरोवर पैसे वापस करता है तो सिक्योरिटी को वापस करता है। हम जब ओनरशिप की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि बोरोवर की वो जनरल प्रॉपर्टी थी and when it goes in the hands of the money lender, it becomes a special property because the ownership belongs to somebody else. He has got a special property, a third party has got ownership, he is having the possession just to enforce his claim over the लोन. लोन उसको जो है सिक्योरिटी के रूप में जो है उसने अपने पास में ये प्रॉपर्टी रखी है, इसको हम बोलेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम किसको डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं सिर्फ जनरल प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं एंड नॉट विद द स्पेशल प्रॉपर्टी. दूसरा जो है, एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी. एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड ऑन दिस. गुड्स की जो परिभाषा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज गुड्स, और गुड्स की जो परिभाषा है वो बड़े इंटरेस्टिंग है. गुड्स इक्वल टू, गुड्स डज नॉट इंक्लूड एंड गुड्स इंक्लूड.
ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. Goods equal to what? Every kind of movable property. Goods does not include what? Actionable claim and money. These two are not included in the definition of goods. And goods includes what? Goods include stock and shares. Goods includes crops. Goods includes grass and things attached to land. Things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale. Grass जो है, grass which is agreed to be cut and sold, that will constitute goods. Now let us discuss this in detail. Goods means every kind of movable property. So this pen is duster, good. Mic, good. Table, fan, goods है. What about the door? Is it movable? दरवाजा खुलता है, बंद होता है, मूवेबल है क्या? और विंडो पेन जो है आपका वो मूवेबल है क्या? इसलिए मूवेबल है क्या? प्रेजेंटली दे आर पार्ट ऑफ द इमूवेबल स्ट्रक्चर. एट प्रेजेंट दे आर पार्ट ऑफ द इमूवेबल स्ट्रक्चर. दे कैन बी डिटैच्ड. उसको हम अलग कर सकते हैं एंड वी कैन मेक देम मूवेबल. अभी तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का हिस्सा बने हुए हैं. तो अ बिल्डिंग, अ लैंड, दीज आर नॉट मूवेबल. तो every kind of movable property is goods. Goods do not include actionable claim and money. What is actionable claim? Right to a debt or to any beneficial interest in movable property not in the possession of the claimant, which can be recovered by a suit or a legal action. Actionable claim is a claim which a person can get by a legal action. Suppose I have sold the goods on credit. मैंने वर्धा में एक कस्टमर को उधार माल बेचा है, 50,000 का माल मैंने उधार बेचा है. ये जो डेट ड्यू जो है, that becomes what? That becomes actionable claim. I can recover this 50,000 rupees by filing a suit against the debtor. डेटर के अगेंस्ट में जो है मैं सूट फाइल कर सकता हूं. करेक्ट? ये हो गया मेरा एक्शनेबल क्लेम. लैंडलॉर्ड के लिए जो एरियर्स ऑफ रेंट है, लैंडलॉर्ड के लिए वो क्या बन जाता है? एक्शनेबल क्लेम. लैंडलॉर्ड सूट फाइल करके वो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है, एरियर्स ऑफ रेंट है, वो वसूल कर सकता है. करेक्ट? तो एक्शनेबल क्लेम को मनी नहीं माना गया है, को गुड्स नहीं माना गया है. एक्शनेबल क्लेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. गुड्स ऑल्सो डू नॉट इंक्लूड मनी. व्हाट इज मनी? Money means the legal tender money. Legal tender money is that money which is readily acceptable by every person. इंडिया में जो रुपी है, रुपी नोट्स है, दे आर लीगल टेंडर मनी ऑफ इंडिया. ये बात अलग है कि आजकल हमारे रुपए जो है पाकिस्तान में ज्यादा छपते हैं इंडिया के बजाय. सब जो है फेक करेंसी इतनी चल निकली है अभी कि गांव-गांव में तो इतनी फेक करेंसी निकली कि पूछा मत. कहते हैं कि एवरी थर्ड और फोर्थ 500 रुपी नोट इज अ फेक नोट. एंड इट अपीयर्स टू बी सो रियल, यू नो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ फेक नोट और द रियल नोट, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी. नकल में भी अक्ल लगती है, तो लगा कि उन्होंने जो है अक्ल से नकल की है उन्होंने, और ये हालत हो गई है.
इसलिए गवर्नमेंट की जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाती आ रही है। क्यों बढ़ाती आ रही है? ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मालूम नहीं है कि मनी सप्लाई कम कैसे होगा। मनी सप्लाई तो भाव हमारे दूसरे देश से आ रहा है। द मनी कम्स टू नेपाल, यू नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं मालूम, ऐसा नहीं मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नकली 500 रुपये 300 में खरीद लेते हैं लोग। 300 रुपये देकर वो नकली 500 का नोट लेते हैं। ये धंधा कर रहे हैं। कौन धंधा कर रहे? इंडियन से कर रहे धंधा। ये तो मनी डज नॉट इंक्लूड व्हाट? कीजिए, वो लिखिए, डज नॉट इंक्लूड ओल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसी। ओल्ड कॉइन्स, पुराने जमाने के जो सिक्के 1920s में जो है चांदी के सिक्के चलते थे, उसको कलदार बोलते हैं। वो 1 तोले का एक सिक्का होता है, वो उसकी बहुत वैल्यू होती है। आज वो जो है 500 में बिकता है वो ओल्ड कॉइन्स। इट हैज गॉट एन एंटीक वैल्यू, यू नो। फॉरेन करेंसी इज नॉट मनी। फॉरेन करेंसी इज नॉट मनी एंड देयरफॉर फॉरेन करेंसी इज गुड। करेक्ट? फॉरेन करेंसी इज नॉट मनी. Goods do not include money. Money does not include foreign currency, and therefore foreign currency is good. Because foreign currency is not money, therefore foreign currency is good. Therefore we can buy and sell dollars, है ना? हम लोग डॉलर, पाउंड, यूरोस खरीदते हैं ना हम लोग। क्यों खरीदते हैं हम लोग? क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। बाइंग सेलिंग चलता है ना, करंट रुपए का बाइंग सेलिंग नहीं चलता है। बिकॉज मनी इज नॉट गुड। जो बाहर देश वाले वो लोग बड़े कर ले, लेकिन जो फॉरेन करेंसी है, इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी इज नॉट अ लीगल टेंडर मनी, एंड देयरफॉर foreign currency is not money. Because foreign currency is not money, therefore foreign currency is good. Correct? Sure? Goods का मतलब क्या है? Goods means every kind of movable property. It does not include what? It does not include accidental claim and money, and it includes what? It includes shares, stock and shares. एक ही बात है, stock बोलिए, shares बोलिए, एक ही बात है। Fully paid up shares can be consolidated as a stock certificate. They are essentially paid up shares. Crop, growing crop. I want to sell my crop of oranges. मुझे संतरा मुझे बेचना है। मेरे पास में संतरे के एक बगीचे है और मुझे संतरा बेचना है मुझे। तो how do I sell, you know? The prospective buyer inspects my crop. वो पेड़ में लगे संतरे देखता है, फल देखता है वो, और वो कीमत कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको जो है 1 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। He says that he is ready to give 1 lakh rupees. I agree to sell the crop to him, but immediately he is not going to pluck the oranges, fruits from the tree, you know, क्योंकि वो भी कच्चे है, वो कुछ समय चाहिए उनको। I give the entire possession of my garden to the buyer. Buyer अपने आदमी बगीचे में रखता है, और जैसे जैसे फल जो है राइप होते जाते हैं, फल जो है झाड़ों से तोड़े जाते हैं, और वो जहाँ उसको बेचना है वो बेचते रहता है उसको। 15-20 दिन, 1 महीने में जो है वो पूरा बगीचा खाली कर देता है, पूरा ही प्लक्स ऑल द फ्रूट्स, यू नो। तो जब सौदा हुआ था तब फल झाड़ पे थे, झाड़ जमीन पे है। आप बोलेंगे कि ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि झाड़ तो मूवेबल है नहीं, झाड़ तो लगा हुआ है जमीन से। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि क्रॉप जो है, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग ग्रास, ये सब क्या है? गुड्स है, विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड। ग्रास को आप काट कर आप बेचने वाले हैं, ये गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। तो आप देखेंगे गुड्स की डेफिनेशन में शेयर्स आते हैं, क्रॉप्स आते हैं, ग्रास आती है, ट्रीज आते हैं। ट्रीज तो जमीन में लगे हुए हैं,
but trees can be cut, they can be severed, and they can be sold. All these are included in the definition of what? The definition of sale. Now classification of goods है, we have classified the goods as existing goods, future goods and contingent goods. हमने 3 भागों में इसको विभाजित किया है, गुड्स को, एग्जिस्टिंग गुड्स को, फ्यूचर गुड्स और contingent goods. Existing goods are specific, ascertain or unascertain. Try to understand this. Specific goods and ascertain goods both mean the same. दोनों का मतलब एक ही होता है. They are identified goods. When the goods are identified, they are called as specific or ascertain. And when the goods are not identified, they are known as unascertain. Then what is the distinction? The distinction between the specific goods and ascertain goods, let us see that first. The goods which are identified and agreed upon at the time when the contract of sale is made. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है उस टाइम पर जब हम गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट? स्पेसिफिक गुड्स. सेक्शन 2 क्लॉज 14 में दिया हुआ है. गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस टाइम पर जब आप गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं स्पेसिफिक गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, I want to buy a television and I select Videocon 203. ये क्या हो गया? Specific goods हो गया. क्या I want Videocon 203? Specific goods हो गया. आप किराने की दुकान में जाते हैं, आपको चाय की पत्ती चाहिए, आप कहते हैं I want Society brand tea, तो Society टी आप लेते हैं. ये क्या है? Specific goods है. या रेड लेबल चाय चाहिए आपको, Specific goods चाहिए, स्पेसिफिक हो गया. या यू वांट अ बुक ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर, स्पेसिफिक हो गया. गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक गुड्स. असर्टेन गुड्स जो है वो दे हैव नॉट बीन डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट असर्टेन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. The term ascertain goods, though it is not defined, they are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale. मान लीजिए आपको जो है गेहूं खरीदने हैं, आप किराने की दुकान में गए, उसने आपको 3-4 सैंपल गेहूं को आपको बता दिए. आपने एक सैंपल चुन लिया, आप कहे हाँ भाई मुझे ये जो है ये सैंपल का मुझे गेहूं चाहिए और मुझे 2 बोरा गेहूं निकाल दीजिए आप. तो आपने इसको आइडेंटिफाई किया, तब जाकर दुकानदार जो है उसके पास में जो है हजारों बोरों का स्टॉक रखा हुआ है. दैट इज ऑल अनसर्टेन गुड्स. उसमें से आपने जो चुना है वो 2 बोरे उसने अलग से निकाल दिए. दे बिकम व्हाट? दे बिकम असर्टेन, दे बिकम आइडेंटिफाइड. जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद में व्हेन द गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर नोन एज असर्टेन गुड्स. दोनों में अंदर यही है. आप देखेंगे कि वेदर इट इज स्पेसिफिक गुड्स और वेदर इट इज असर्टेन गुड्स, दोनों का मतलब एक ही होता है. बोथ आर आइडेंटिफाइड गुड्स, ओनली द टाइम ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज डिफरेंट. स्पेसिफिक गुड्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड असर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. दोनों में जो है यही एक अंतर है, बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है. आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है. जब गुड्स का हम आइडेंटिफाई करते हैं हम उसको बोलते हैं असर्टेन या स्पेसिफिक गुड्स. जब असर्टेन नहीं करते, जब व्हेन द गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड, दे आर कॉल्ड एज अनअसर्टेन गुड्स. वो किराने की दुकान वाले के पास में जो है 100 बोरे गेहूं के रखे हुए के गोडाउन में, वो क्या हो गया? अनअसर्टेन गुड्स हो गया, नॉट आइडेंटिफाइड. जब कोई कस्टमर आता है तो उसमें से वो गेहूं के बोरे आइडेंटिफाई करके वो बाहर निकालता है. दे बिकम असर्टेन देयर आफ्टर, दे आर आइडेंटिफाइड आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट, दिस वी हैव ऑलरेडी. फ्यूचर गुड्स.
Future goods are those goods which are yet to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale. So I want to buy Activa scooter. The dealer tells me कि आपको 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा, आपको मैं जून 2012 में गाड़ी दूंगा और मैं 1000 रुपये देकर गाड़ी बुक करता हूँ आज. ये क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स. स्कूटर मैन्युफैक्चर होगी और तब जाकर मुझे मिलेंगे. और डीजल स्विफ्ट जो गाड़ी है उसकी 8 महीने का वेटिंग है. हड़ताल चल रही है मारुति कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया है, प्रोडक्शन बंद हो गया एक प्रकार से. आज आपको गाड़ी अभी तो बुकिंग करना ही लेना ही बंद कर दिया उन्होंने. महिंद्रा एंड महिंद्रा हैव इंट्रोड्यूस अ न्यू SUV, यू नो, XUV 500 नाम है जिसका. इट्स अ बिग हिट, यू नो. 5000 गाड़ी सिर्फ 4 शहरों में बुक कर चुके हैं. ऑल ओवर इंडिया में तो लॉन्च ही नहीं हुई है वो, और वो 11 लाख की गाड़ी है और 5000 दे आर बुक्ड. अब उन्होंने बुकिंग बंद कर दी क्योंकि ये 5000 बनाने में उनको 4-5 महीने लगने वाले हैं. वो कह रहे कि हम बुकिंग अभी बंद करते हैं. गुड्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड, जिन्होंने बुक किए गुड्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड देन डिलीवर्ड टू देम. फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड विच आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड. आपने एक्टिवा गाड़ी बुक की, 1000 रुपये दिए, आपने गाड़ी बुक की, गाड़ी की डिलीवरी मिलेंगी आपको जून 2012 में. आपको लगता है इट इज वर्थ वेटिंग, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, यू मे वेट और यू मे गो फॉर द अदर सिमिलर टाइप ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल इन द मार्केट. आपको वेट नहीं करना है, अर्जेंसी आपको ज्यादा है तो. So future goods are yet to be manufactured. और उसके बाद में आते हैं contingent goods. Contingent goods, they are the goods, the acquisition of which by the seller depends upon a contingency. Contingency means uncertain future event. वो मिल सकता है आपको या नहीं मिल सकता. The seller will be able to give the delivery provided he is able to get it. You go to Lakadganj market and you contact a dealer over there. आप कहते हैं कि I want a teak wood of a particular size. बहुत odd size का wood है वो डीलर कहता है साहब बहुत मुश्किल है मिलना, फिर भी अभी ऑक्शन होने वाला है वर्धा के अंदर, मैं वहाँ जाकर मैं ट्राई करता हूँ, मुझे मिलेगा तो मैं आपके लिए ले आऊँगा, आप मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दीजिए. तो बायर 5000 रुपये एडवांस दे देता है अगेंस्ट द ऑर्डर. The dealer goes in the auction and auction में उसको वो particular size का wood मिल जाता है. He acquires it and he supplies it to the customer. अगर नहीं मिलता है तो 5000 रुपये वापस कर देंगे, साहब मुझे वो नहीं मिला, आपके 5000 रुपये वापस ले लीजिए आप. तो मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है. मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. Then we come to the next. इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और पेरिशिंग ऑफ गुड्स. देखिए कई बार क्या होता है कि गुड्स जो है दे में पेरिश और दे में गेट डिस्ट्रॉयड, यू नो. 3 सिचुएशंस हैव बीन गिवन ओवर हियर. वन इज जस्ट a deal has been struck and before you give the delivery the goods are destroyed. A deal has been struck, agreement to sell हो गया है, sale होने के पहले goods have been destroyed. Section 7 and 8 they deal with this, लेकिन please remember 7 and 8 are applicable only when the goods are specific goods. Goods perishing before making the contract. Contract होने के पहले ही goods क्या हो गए? perish हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. और द कमर्शियल वैल्यू बिकम्स नील, तो भी वो डिस्ट्रक्शन ही माना जाएगा. मैं सीमेंट खरीद रहा हूं, सेलर ने ट्रक में सीमेंट जो है भिजवाया है, अचानक जो है बेमौसम बारिश हो जाती है. अभी जो है अक्टूबर के महीने बारिश नॉर्मली होती नहीं, लेकिन मान लीजिए अचानक बारिश हो गई, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, वेदर चेंज हो जाएगा अचानक, और बारिश हो गई और पूरा का पूरा सीमेंट जो है उस पर बाहर पानी गिर गया, सीमेंट क्या बन गया? पत्थर बन गया. तो क्या बोलेंगे हम? द गुड्स हैव पेरिश्ड. मेरे काम के नहीं रहे वो, तो मुझे तो सीमेंट पॉट सीमेंट चाहिए मुझे, तो ये तो पत्थर हो गया. तो फिर वो तो गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट में जो है, वेयर स्पेसिफिक गुड्स हैड पेरिश
or became damaged. Please remember here, यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं? Specific goods की हम बात कर रहे हैं. Where specific goods had perished or became damaged. Specific goods यानी identified goods. Not unascertain goods. Ascertain goods की हम बात कर रहे हैं. They had perished or became damaged without the fault of the seller or the buyer after the agreement to, before the contract was made, without the knowledge of the seller, the contract is void. So when the specific goods had perished or became damaged before the contract was made, क्या होता है कि एक अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है भाई हम ये सौदा करेंगे, लेकिन सौदा कंप्लीट होने के पहले ही जो है, अब इसके पहले कि एडवांस है, सामने वाला जो है बात पक्की करे, डॉक्यूमेंटेशन हो, उसके पहले ही जो है गुड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. हम एग्री कर रहे ठीक है हम डील करेंगे, ये अरेंजमेंट हो गया मेरा, लेकिन इसके पहले कि वो एग्जीक्यूट कर पाऊं मैं, वो गुड से डिस्ट्रॉय हो गए. मेरी पुरानी गाड़ी है, मैंने पुरानी गाड़ी बेचने का सौदा कर लिया, बात तय हो गई. बायर कहता है ठीक है भैया मैं 1 लाख में तुम्हारी गाड़ी खरीदेंगे, तैयार हो. मैंने कहा ठीक है. तो मैं बाहर से कहता हूं देखो भाई साहब आप मेरे घर पे आ जाइए, 10,000 रुपये लेकर हम लोग जो है इसको डील को पक्की कर लेते हैं, मैं आपको 10 दिन के बाद में कार की डिलीवरी दे दूंगा. ठीक है. वो बायर मेरे घर की तरफ आ रहा है कि मेरी कार जो है झाड़ के पास में खड़ी है और झाड़ कार पर गिर जाता है, गाड़ी पूरी डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाती है एक प्रकार से, बेचने के आगे योग्य नहीं रहती है वो. और मान लीजिए मारुति 800 गाड़ी है, तो फिर तो पूरा जो है वो इट बिकम्स अ स्क्रैप, रिपेयर के लायक ही नहीं रहती है वो. तो वो जो है मेरी डील खत्म हो जाएगी मेरी. तो फिर एग्जाम्पल दूसरा दिया है, ए एग्रीज टू सेल अ सर्टेन हॉर्स टू बी. इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन, दो नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट इज वॉइड. दोनों को मालूम नहीं था, ये घोड़ा मर चुका था, मरे हुए घोड़े का सौदा कर रहे थे, वो वॉइड हो गया. आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल एंड बिफोर द सेल, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, मैंने उससे 10,000 रुपये ले लिए, एग्रीमेंट टू सेल हो गया है, और बाहर से कहता हूँ कि देखो भैया मेरी नई गाड़ी आने वाली है, जैसी मेरी नई गाड़ी आएगी 4-5 दिन में मैं आपको ये पुरानी गाड़ी की डिलीवरी दे दूंगा, मैं जब तक गाड़ी मुझे यूज करने दो. बाहर एग्री हो जाता है, 10,000 रुपये उसने मुझे दे दिया. 90,000 कब देगा? जब मैं उसको गाड़ी की डिलीवरी दूंगा तब मुझे 90,000 देगा वो. ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया यहाँ पर. अभी पहले क्या बताया मैंने, 10,000 देने के पहले ही गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो पहला केस हो गया, वो स्पेसिफिक गुड्स है. अब यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, उसने 10,000 रुपये दे दिया उसने. इसके पहले कि मैं डिलीवरी दूं गाड़ी को, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, व्हीकल इज टोटली डिस्ट्रॉयड इन द एक्सीडेंट, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड. दोनों केसेस में वॉइड हो जाता है. ब्लाइंडली रिमेंबर दिस. Perishing of goods means not only the physical destruction of the good, but it also covers loss by theft or the loss in the commercial value of the good. For example, when the cement is spoiled by water and becomes a stone. Please note that in both the cases 7 and 8, the goods must be specific goods and not uncertain goods. ये बहुत important है. Uncertain goods नहीं होना चाहिए. कौन से goods होना चाहिए? स्पेसिफिक गुड्स या सर्टेन गुड्स होना चाहिए, आइडेंटिफाइड गुड्स होना चाहिए. एक एग्जांपल लीजिए कि एक आदमी ने जो है 50 बोरे जो गेहूं के चाहिए थे, उसने जो है होलसेल डीलर को, गेहूं के होलसेल डीलर को उसने ऑर्डर दिया कि आई वांट 50 बैग्स ऑफ व्हीट. होलसेल डीलर बोलता है साहब मेरे गोडाउन में रखे हुए 1000 बोरे, उसमें से मेरा आदमी जो है 50 बोरे निकाल कर लाएगा. इसके पहले कि वो 50 बोरे अलग से निकालता, गोडाउन में आग लग गई और 1000 के पूरे के पूरे क्या हो गए, बोरे जल गए. अब बताइए क्या होगा इसमें? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कि वैलिड रहेगा? वैलिड रहेगा. क्यों वैलिड रहेगा? क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स का नहीं हुआ, ये गुड अनसर्टेन है. उसका भले उसका गोडाउन पूरा जलकर भस्म हो गया हो, उसको तो बाजार से 50 बोरे लेकर अपने कस्टमर को देना ही होगा. कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा.
स्पेसिफिक गुड्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं एग्रीमेंट टू सेल के बाद, सेल के पहले या एग्रीमेंट टू सेल के पहले, कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, अरेंजमेंट हो गया है, तब अगर डिस्ट्रॉय होते हैं स्पेसिफिक गुड्स तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अनसर्टेन गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस, प्राइस का होना जरूरी है। थर्ड कंपोनेंट जो है हमने क्या देखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रिक्वायर्स व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन फॉर अ प्राइस, transfer of property in goods for a price, that is what, contract of sale. What is price? Price is the money consideration for a sale of goods. And what is money? Money means the legal tender money. Old and rare coins are not included in the definition of money. अगर मान लीजिए पार्टली मनी है और पार्टली गुड्स है तो क्या होगा, पार्टली मनी एंड पार्टली गुड्स, विल इट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? यस। जरूरी नहीं है कि पूरा ही मनी में हो, थोड़ा भी मनी में रहेगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन पूरे के पूरे गुड्स को अब गुड्स में एक्सचेंज करें ना, बार्टर है, बार्टर इज नॉट अ सेल, बार्टर सेल नहीं है। प्राइस का होना जरूरी है, मनी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हाउ द प्राइस इज ऑफ द गुड्स असर्टेन, सेक्शन 9 सेज that price can be ascertained by 4 methods. One is it can be fixed by the contract. The price can be fixed by the contract. Contract के द्वारा प्राइस फिक्स कर सकते हैं, जो भी पार्टी बात तय करे। गेहूं बेच रहे तो बोल रहा है ठीक है भैया 2200 रुपए जो है 100 किलो के 2200 रुपए, 25 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, जो भी बात है, मे बी लेफ्ट बी फिक्स इन एग्रीड मैनर, कि थर्ड पार्टी जो प्राइस बोलेंगे वो आपको, कार बेचनी है तो कितने में बेचनी है, तो हम बोल चलो भैया ऑटो एक्सपोर्ट के पास में चलते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, वो कार को देखता परखता कहता कि भाई इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, थर्ड पार्टी ने तो फिक्स किया, उस पर एग्री हुए थे, इज इट वैलिड? यस। अ थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो फिक्स द कॉन्ट्रैक्ट. It may be determined in the course of dealing between the parties, such as manufacturing cost or market price. कहते कि देखो भैया अब मुझे कोई कंपनी के शेयर बेचने हैं, कौन से भाव पे बेचूं मैं कहता हूं कि देखो 20 अक्टूबर को जो उसका लोएस्ट रेट और हाईएस्ट रेट जो मार्केट में ट्रांजैक्शन होगा, देखिए हर रोज अखबार में जो है हाईएस्ट एंड लोएस्ट दोनों रेट आती है, दोनों का जो एवरेज रहेगा, हाईएस्ट और लोएस्ट को ऐड करो, डिवाइड बाय 2, एवरेज रेट निकल जाएगा, वो एवरेज रेट के ऊपर हम सौदा करेंगे, परफेक्टली फाइन। बायर कहता ठीक है। रीजनेबल प्राइस, अगर ए बी सी में आपने प्राइस को फिक्स नहीं किया तो आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, आपको जो भी यथा योग्य जो कीमत है उसकी, जो भी रीजनेबल प्राइस है वो आपको योग्य कीमत आपको उसकी चुकानी पड़ेगी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय थर्ड पार्टी। एक डील ऐसी हुई, मान लीजिए कि द सेलर एंड द बायर they have struck a deal, it is for the sale of a car, but one of the conditions of the agreement is the price will be fixed by the third party T, who is an auto expert. If T fixes the price, अच्छी बात है,
दोनों का सौदा हो जाएगा, टीप जो बात प्राइस बोलूँगा उस पर बायर रेडी हो जाएगा, सेलर भी रेडी हो जाएगा, डील हो जाएंगी। समस्या तब आती है जब टी कहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स द प्राइस, तो क्या होगा? इफ द थर्ड पार्टी डज नॉट फिक्स द प्राइस और रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस, इट बिकम्स वॉइड। लेकिन मान लीजिए बायर ने ऑलरेडी वो माल ले चुका है, बायर हैज ऑलरेडी टेकन द पोजेशन, पार्ट पेमेंट भी कर दिया, पूरा पेमेंट नहीं किया, और थर्ड पार्टी बोलता भैया मैं प्राइस फिक्स नहीं करता, तो क्या होगा? तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, बिकॉज बेनिफिट आपने ले लिया है, आपको रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा ना। व्हाट इज रीजनेबल प्राइस विल डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड दैट कैन आल्सो बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। दो कार की डीलिंग हुई, थर्ड पार्टी के पास में गए प्राइस फिक्स करने के लिए, वो बाहर गांव गया था, इस बीच बायर कहता भैया एक गाड़ी तो तुम मुझे दे दो, दूसरी कार बाद में देना तुम, और ये तुम कुछ एडवांस में पैसे ले लो। सेलर ने कहा ठीक है। बायर ने एक गाड़ी ले लिया, उसको यूज कर रहा है। 4-5 दिन के बाद में वो थर्ड पार्टी आया, उसके पास में जब गए प्राइस फिक्स करने के लिए, उसने मना कर दिया कि आई विल नॉट फिक्स द प्राइस। अब यहां पर क्या है, एक कार तो दे चुके हैं, जो कार दे चुके हैं और जो कार यूज कर रहा है बायर, उसका रीजनेबल प्राइस बायर को देना होगा, और दूसरी कार का सौदा होगा क्या? अभी नहीं, दूसरी कार का सौदा कैंसिल हो गया क्योंकि थर्ड पार्टी ने प्राइस फिक्स नहीं किया। करेक्ट? इस प्रकार से जो है ये डील को जो है किया जाएगा। ये कई बार जो है द थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड, जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो दबाव डालती है थर्ड पार्टी पे कि तुम प्राइस फिक्स मत करो, डील हमने जो करी है वो घाटे की डील हो गई है। सेलर हो सकता है, बायर हो सकता है, दो में से कोई भी पार्टी हो सकती है, जो जानबूझकर उसको धमकी देते हैं थर्ड पार्टी को, खबरदार जो तुमने प्राइस फिक्स किया, तुम बोल देना मैं प्राइस फिक्स नहीं करूँ, ताकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए पूरा। अगर ये मालूम पड़ता है किसी एक पार्टी ने जो है थर्ड पार्टी को प्रिवेंट किया प्राइस फिक्सेशन के अंदर, उस पार्टी से हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने जो है इसमें ही हैज प्रिवेंटेड द थर्ड पार्टी फ्रॉम फिक्सिंग द प्राइस। नेक्स्ट, स्टेपुलेशंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्राइस। स्टेपुलेशंस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ प्राइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, stipulation as to time may be of two kinds. Stipulation relating to time of payment. Stipulation का मतलब होता है terms, जो terms and conditions होते हैं उसको हम बोलते हैं stipulation. Stipulation regarding the time of payment and stipulation relating to not relating to time of payment, delivery के बारे में जो भी है. Now the law is very clear on this. Stipulation regarding time of payment is not regarded as the essence of contract. यानी पेमेंट में कुछ 2-4-5 दिन की देरी भी हो गई है तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट नहीं आया मिलकर, आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं बस। लेकिन पार्टीज में एग्री टू द कॉन्ट्ररी, पार्टीज में एग्री कि नकदी पैसे दोगे तो हम आपको डिलीवरी देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखिए हम कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हमको पूरे पैसे देने पड़ते हैं। अब अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक वाला पूरा का पूरा जो है पे ऑर्डर देगा कंपनी को, बिना पैसे दिए आपको जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द कार। शोरूम से बाहर निकलेंगे नहीं बिना पूरा पैसे दिए। शोरूम से बाहर गाड़ी निकल गई तो उसकी कीमत 50,000 से 1 लाख कम हो जाती है, 1 घंटे में 1 लाख की कीमत कम हो जाती है। और मान लीजिए वो नई गाड़ी का आपने जो है एक्सीडेंट कर दिया तो रोएगा वो डीलर। इसलिए आप देखेंगे पूरे देश में क्या पूरे संसार में ऐसे ही चलता है, अगर आप कार खरीद रहे हैं तो पूरे पैसे जब देते हैं तभी कार आपके नाम पर ट्रांसफर होती है, तभी कार आपको ले आए दिया जाना है। आधे पैसे में कार नहीं मिलती आपको। तो जब पार्टी ने एग्री किया है कि भाई पूरे पैसे दोगे तो ही आपको माल मिलेगा तो अलग बात है, तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। यू गो टू तनिष्क ज्वेलरी शॉप, आपको ज्वेलरी खरीदनी है तो पूरे पैसे आप देंगे तो ही जो है आपको वो ज्वेलरी का डब्बा आपके हाथ में देगा। आपने मान लीजिए 1.5 लाख की ज्वेलरी खरीदी, आपके पास में 1,20,000 है, 30,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहे हैं, आप कहते हैं भैया मैं कल ला कर दूंगा, तो क्या बोलेगा वो
ज्वेलरी भी कल लेकर जाना हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेमेंट इज एसेंशियल कंडीशन हियर। अगर पेमेंट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो पेमेंट को आप डिले कर सकते हैं। 2, 4, 5 दिन का डिले होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर डिलीवरी ऑफ गुड्स एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टाइमली डिलीवरी जरूरी है। अब मुझे फैक्ट्री में कोयला चाहिए, अगर कोयला टाइम पर नहीं आया तो मुझे फैक्ट्री का प्रोडक्शन रुक जाएगा। आप देखें कितने पावर प्लांट जो है, जैसे अब पिछले 5-7 दिन में जो है 8-8 घंटे लाइट बंद हो रही है। पावर शॉर्टेज क्यों है? तो कोयला नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ सब थर्मल पावर प्लांट्स है, पूरे विश्व में थर्मल पावर प्लांट्स बंद होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ जो है नए नए थर्मल पावर प्लांट्स खुल रहे हैं। विदर्भ के अंदर ही कम से कम जो है 40 से 50 थर्मल पावर प्लांट्स आ रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स आर एनवायरमेंट, it is hazard, it's an environment hazard, you know. They create a lot of pollution, they require a lot of water. इतना पानी लगता है कुछ पूछिए मत उनको। अगर ये 40 प्लांट को पानी देना पड़े तो पूरे विदर्भ में जो है पानी का शॉर्टेज हो जाएगा, पानी पीने को मिलने वाला नहीं है। और ये कोयले के जो पावर प्लांट्स है, they create a lot of pollution, और that is the reason why worldwide these plants are not being set up in the worldwide. और वहाँ पर तो बैंक्स लोन भी देती नहीं है, थर्मल पावर प्लांट्स को लोन भी मिलता नहीं है, फंडिंग में नहीं होती है इसकी, क्योंकि एनवायरमेंटली डिजास्टरस है ये। और हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो है जगह जगह पावर प्लांट्स की परमिशन सरकार दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं और ये पावर प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं। दिस हैपेंस ओनली इन आवर कंट्री, यू नो। Nobody has got regard for the environment, you know. तो कोयला नहीं है, इससे पावर प्लांट बंद है। तो अब क्या है कि यहाँ पर डिलीवरी ऑफ गुड्स इट बिकम्स एसेंशियल। तो वही बात यहाँ पर की है कि whether any stipulation, example delivery of goods is of the essence of contract will depend upon the terms agreed upon. It means that the time of delivery can also be made the essence of the contract. टाइम ऑफ डिलीवरी को हम एसेंस बना सकते हैं कि कोयला बहुत जरूरी है, टाइम पर नहीं आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। इफ इट इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। डिलीवरी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी नहीं दिए तो सामने वाली पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, डैमेजेस भी वसूल कर सकती है आपसे। तो सपोज इफ टाइम इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स इज मेड द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, if the seller does not make a delivery within stipulated time, the buyer can avoid the contract. The contract becomes voidable at the option of the buyer. So, in case of ordinary commercial contract for sale of goods, time is prima facie of the essence of the contract with respect to delivery. Normally क्या होता है, डिलीवरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पेमेंट का 4-5 दिन का डिले होगा, यहाँ वहाँ हो गया तो कोई खास बात नहीं, अनलेस पेमेंट इज ऑल्सो द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मल डिलीवरी को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टेपुलेशंस रिगार्डिंग द टाइम ऑफ पेमेंट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी। कंक्लूजन क्या निकलता है कि इफ इट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टीज हैव एग्रीड दैट पेमेंट विल बी मेड फर्स्ट एंड देन गुड्स विल बी डिलीवर्ड, तो वो करना पड़ेगा। अन्यथा जो है the time of payment is not the essence of the contract. Similarly डिलीवरी के बारे में पार्टीज ने एग्री किया है कि डिलीवरी जो है पहले मिलनी चाहिए तभी पैसे दिए जाएंगे, तो डिलीवरी मस्ट बी गिवन, that has been given the importance. Otherwise डिलीवरी कैन बी इवन मेड लेटर ऑल्सो, डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इंटेंशन पर डिपेंड करने वाला है। इफ इट इज द एसेंस देन इट मस्ट बी परफॉर्म इन टाइम, अदरवाइज यू हैव गॉट विल गेट रीजनेबल टाइम टू deliver the goods or to make the payment, you know. This is all about section number 11, and I will conclude today, not today, only for this session now. I'll give you a small break and then we shall again assemble. 10 मिनट की ब्रेक।